From the sleepless nights to the unforgettable sacrifice, from working selflessly to missing their own families, from 14-hour shift to feeding patients timely, from the farewell of recovered ones to losing a heartbeat. They handled all with a great smile, hiding their bruised skin underneath their protective device. Let's bring our hands together and give a round of applause for the people who left their families for us, also famously known as COVID warriors. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, पास से बेल आइकन बटन उसको प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के लाई हूँ रियल टॉक विद रियल हीरोज का एपिसोड नंबर 2। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच इट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड गाइस, जैसे कि मेरी टैगलाइन बोलते हैं रियल टॉक विद रियल हीरोज, तो आज मैं आपको मिलवाऊंगी एक ऐसी ही एक रियल हीरो से, अ कोविड वॉरियर। तो मिस सुरभि गौर, हु इज करंटली वर्किंग एज अ रजिस्टर्ड नर्स इन वेस्टर्न रेलवेज इन मुंबई। तो आज हम उनके एक्सपीरियंसेस की बात करेंगे। शी हैड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस सर्विंग द कोविड पेशेंट्स। तो आज हम उन्हीं से बातें करेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस जानेंगे। एंड गाइस, आई लव टॉकिंग टू हर एंड बिलीव मी, she has been talking about the down to root causes and issues they are currently facing, the staff who is currently dashing their sweats and working in the hospitals. So हम देर नहीं करते हैं, let's move on to the interview. Hello ma'am, how are you? First of all, thank you so much for accepting my proposal and giving your valuable time. I know you are too busy with your shifts and you are spending some time with your family also. Thank you Ankita for choosing me to be a part of this initiative that you've started. Thanks to you ma'am. तो जनता जानना चाहेगी a brief intro about your job and how your life changed in the COVID. In December 2019, I shifted to Bombay to start this new job with Western Railways. But soon, after like 2-3 months, this pandemic was there and it changed my life completely. So, मतलब ऐसा शुरू में जब आया तो we were also very scared. जब मेरा first round of COVID duty था तो I was posted along with a senior staff nurse. So, but thankfully he's very like understanding and he asked me to stay outside on the nursing station and he said he'll be going inside because I was very afraid to wear that PPE. Okay, so the first day went, मतलब I was doing the writing work and he went inside, so I was like चलो आज का दिन निकल गया. The second went, they also went the same way. Then the third day I thought to myself, this is a pandemic, it's not a joke, like it's not ending in 2-3 days. So like how long will you run away from this thing? You have to wear the PPE, you have to take a step. You are being paid the same salary as that senior. Okay, so you cannot run away. So the third day finally I said कि भैया let me go inside. So still he was like के बच्चे will you be able to do it? Now I was मतलब not really ready but okay ठीक है तो किया. First day when I wore the PPE, I guess I stayed inside only for 50 minutes and I was exhausted, completely exhausted. I could not do it. So next day I stayed inside for 1.5 hours. The time gradually increased. My parents were calling me every day, are you okay? Are you okay? Are you okay? I don't know if I'm okay. Even if I catch the virus, I won't be knowing it on day 1. So yes, like अभी तो I'm fine. तो ऐसा मतलब फिर धीरे धीरे आदत पड़ गया. So now I've completed my 7 rounds of COVID duty. And by God's grace, I am fit and fine. I have not got the virus yet. I know ma'am, this all would have been really stressful journey and all your breakdowns. So how you handled all these things? So the worst I guess was night shift only when this pandemic started. Because you know it becomes very scarier. Like you're sitting with those patients and those patients cannot speak because most of them were on ventilators, on oxygen, and you're sitting in that PPE and you know it was a bit different than the normal night shift. Like night shift में
थोड़ा सा नॉर्मली मुझे अच्छा नहीं लगता, बिकॉज लाइक इन अदर हॉस्पिटल्स यू हैव स्टाफ इन द अदर वार्ड और यू हैव 2 staffs in 1 ward, but in railways there is 1 staff over 40 patients. The ratio is 1:40. So you're alone sitting there in that PP, sweating like anything, and all the patients are sleeping. So that ambience was very scary in the first round. But later, okay, I got used to it. Homesickness होता है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा होता है. मतलब मैं लाइफ में पहली बार ही दिल्ली से बाहर निकली हूँ रहने के लिए. अभी 1 ही महीने में समझ में आ गया था कि स्टेइंग अवे फ्रॉम होम, इंडिपेंडेंट लाइफ और ये वो, इसका जितना प्रोज है उतना कॉन्स भी है. सुबह उठो, अपने लिए खाना बनाओ, शॉपिंग करके आओ, ड्यूटी जाओ, आओ, यूनिफॉर्म धो, मतलब इतना ज़्यादा काम है और यू डोंट हैव एनीबडी टू टॉक. सो मेरे लिए तो कैसा, बिफोर कोविड ओनली आई गेस, ऐसा मतलब माई मेंटल हेल्थ स्टार्टेड गेटिंग अफेक्टेड. ठीक है, और उसके बाद आई केम होम फॉर 1 week. जब तक दोबारा लीव लेने का टाइम आया तो कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गया, तो 4.5 months स्ट्रेट आई कुड नॉट कम होम. और मतलब आई डेंट इवन वीडियो कॉल माई पेरेंट्स दैट मच, क्योंकि आई स्टार्टेड क्राइंग, तभी फिर पेरेंट्स भी रोने लग जाते थे, तो फिर बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता था. बिकॉज यू डोंट हैव एन ऑप्शन. फिर पेरेंट्स परेशान हो के ऐसे बोलते थे कि यार इतना परेशान हो रही है, छोड़ दे जॉब वगैरह, वापस आ जा, दोबारा देख लेंगे, दोबारा एंट्रेंस दे देना, दिल्ली का कोई एंट्रेंस निकाल लेना. बट ऐसा नहीं होता, राइट? दैट्स नॉट व्हाट अ हीरो डज. सो ठीक है, फिर आदत डालना पड़ा उस चीज़ का. तो 4.5 months के बाद फाइनली जून में जब थोड़ा सा लॉकडाउन ईज हुआ तो आई गॉट केम होम. I know this has been equally difficult for your parents too, and in this right yeah, and in this situation I guess the emotional support or the support system is must. You have that thing, means they are always there, they should help you in this situation. So we all are reading stuffs online and the media. तो क्या मीडिया वो दिखा रही है जो हम असल में जानना चाहते हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी है? What's your take on that? No, absolutely no. I mean, I guess कोविड का जो इतना ज़्यादा पैनिक जो क्रिएट हुआ, मतलब आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द मीडिया, लेकिन कोविड पैनिक वॉज क्रिएटेड बाय द मीडिया. ठीक है, अभी जो रियल इन्फॉर्मेशन है वो किसी को नहीं मिला. अभी भी इनफैक्ट recently 2 of my relatives got this virus and they were still calling me and asking यार क्या होता है, कैसा होता है, what is the line of treatment और क्या करना पड़ेगा, ये वो डर लग रहा है, मतलब मर तो नहीं जाएंगे ऐसा. तो it is like what is the media for? It is for spreading the right information. ठीक है, बट मीडिया ने इतना पैनिक क्रिएट कर दिया था कोविड को, लेकिन पीपल आर स्टिल नॉट फॉलोइंग व्हाट शुड बी फॉलोड आई गेस. एंड इफ यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, इफ यू फॉलो क्वारंटाइन प्रॉपरली, और सिम्टम्स है तो आप डॉक्टर के पास जाओ, सिम्टम्स नहीं है तो आप सेल्फ क्वारंटाइन में रहो. आई पर्सनली फील इतना पैनिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि many of my colleagues have got the virus because we are the most vulnerable. We are exposed to the virus almost every day. So most of them have got the virus. They got admitted. 14 days वो लोग रहे, normal basic treatment लिया, and now they've got back on duty. So you have been working 7 days your work shift and 7 days quarantine period. I know quarantine period तो बहुत stressful होता है, स्पेशली जब आप अपनी फैमिली से दूर हैं, आप सिर्फ एक कमरे में हैं. So were you satisfied with your compensation or the pay or the resources or the facilities जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही थी उस टाइम पर? इतना एग्जैजरेट करी है कि हम लोग को ऐसा आलिशान होटल रूम्स एंड एवरीथिंग मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके, फॉर द फर्स्ट 2 rounds हम लोग को मिला था होटल रहने के लिए, बट द ट्रीटमेंट दैट वी गॉट ओवर देयर, आई मीन मैनेजर ने सीधा बोल दिया कि फर्स्ट फ्लोर आप लोगों का है, बट यू आर नॉट सपोज टू यूज द लिफ्ट, यू आर नॉट सपोज टू गो ऑन एनी अदर फ्लोर,
यू विल नॉट कम टू द काउंटर टू आस्क फॉर एनीथिंग. हमारा होटल का स्टाफ आपको कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा. और फिर मतलब अभी 14 डेज होटल में रुकना है क्वारंटाइन के लिए. नोबडी इज कमिंग टू क्लीन योर रूम. योर बेडशीट इज नॉट बीइंग चेंज्ड. एसी रिमोट दे डिड नॉट गिव अस. एंड बिकॉज होटल्स बंद है, लॉकडाउन है तो होटल्स बंद है, तो वेंटिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है. और एसी का रिमोट तक वो लोग नहीं दे रहे थे. इतना अजीब ट्रीटमेंट था. तो मतलब आई डोंट नो अबाउट अदर सिटीज. आई एम टॉकिंग अबाउट मुंबई. आई डोंट नो अबाउट अदर सिटीज. दिल्ली में कैसा है कैसा नहीं है. तो शुरू में बहुत ही ज़्यादा गंदा ट्रीटमेंट था क्योंकि लोग इतना ज़्यादा डरे हुए थे. ठीक है, बट उसके बाद ठीक है, हम लोगों ने भी कंप्लेन किया कि रहने को नहीं हो रहा है ऐसे. तो मतलब वी कैन नॉट लिव. हम लोग अपनी फैमिली से दूर रह के वी आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल, और हम लोग के साथ ही ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा है. तो हम पीने के पानी के लिए भी हैड टू स्ट्रगल. मतलब जब होटल से फिर हमें ऐसा गवर्नमेंट रेस्ट हाउस था, उधर शिफ्ट किया गया. तो उधर पीने के पानी के लिए देयर वाज अ वाटर कूलर, एंड उस वाटर कूलर में फ्लाइज है. तो आई कंप्लेन कि इसमें फ्लाइज है तो क्या करना है. तो देयर आंसर वाज कि मैम हमें क्लोरीन लेवल चेक करने के लिए बोला था और वो चेक कर लिया है, दैट इज परफेक्ट. सो दिस इज लाइक पोर्टेबल, आप पी सकते हैं आप. तो मैंने कहा यार तुम लोग कैसे बातें कर रहे हो, मतलब फ्लाइज तो तुमको दिख रहा है ना. तो दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग. मतलब वो लोग बोल रहे हैं कि बस हमें क्लोरीन का पूछा था तो हमने वो चेक कर लिया, फ्लाइज का हमको कुछ नहीं बोला. तो ऐसा मतलब सेंसलेस बातें लोग करने लग गए थे. तो तब बहुत ज़्यादा इशू हुआ शुरू में 2-3 राउंड में, बट उसके बाद से ठीक है. नाउ वी आर बीइंग गिवन गवर्नमेंट रेस्ट हाउस ओनली, एंड द फूड एंड वाटर सप्लाई एवरीथिंग हैज़ गॉट बेटर. तो यस, we have heard many of your experiences and the emotional sides you have gone through when you or your colleague would have been on your periods during your work shifts. So how you deal with it? Means what was the experience? That's extremely horrible. Literally it is disgusting. I myself I've done 2 rounds of COVID duty during my menses. Like यू हैव नो ऑप्शन. ठीक है, अभी कैसा है कि 2 स्टाफ पर वार्ड होता है पर शिफ्ट. तो मतलब ऐसा है कि अगर 8 घंटे का शिफ्ट है तो 4.5 आवर्स के लिए आप अंदर रहो, फिर 4.5 आवर्स के लिए वो अंदर रहेगा, बिकॉज हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर में उतना टाइम जाता ही है. तो आप ऐसा भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि सामने वाला इंसान जो है वो पूरा 8.5-9 घंटे तक अंदर रह ले. वो दैट इज इम्पॉसिबल. सो यू हैव टू डू इट. मेरे को याद है मेरा जब सेकेंड राउंड जब था मेरा, तभी मेरा सेकेंड डे था. तो सेकेंड डे आई कैन नॉट हैंडल. अभी कैसा है कि आई नो मुझे ऐसा बहुत ब्लीडिंग हो रहा है और यू नो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो मेरे पास ऐसा बात करने का, बहाने बनाने का टाइम ही नहीं है. तो आई डायरेक्टली टोल्ड हिम दैट सी आई एम ऑन माई पीरियड्स एंड मुझे नहीं बैठा जा रहा, मुझे काम ही नहीं हो रहा अंदर का, तो आई नीड टू चेंज अप. एंड तो सेड अरे तो तू मुझे पहले बता देती तो मैं पहले ही आ जाता. एंड द नेक्स्ट डे ऑल्सो यू नो ही आस्क्ड मी बिफोर आई वाज यू नो अबाउट टू डॉन, दैट टाइम ओनली ही आस्क्ड मी कि तू कर पाएगी आज या मैं चला जाता हूँ. तो यू नो दैट वाज अ बॉन्डिंग टाइम बिटवीन मी एंड माई कलीग. मतलब ठीक है, तो अगर आपके कलीग्स अच्छे हैं तो हो जाता है. मतलब वही है, यू अभी आप पानी नहीं पी सकते, यू कैन नॉट गो टू द वॉशरूम, सो यू डोंट हैव एनीथिंग टू हेल्प. तो वही अंदर राउंड्स के वक्त बीच में थोड़ा सा बैठ जाओ, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग कर लो. अदर देन दैट तो देयर इज नो चॉइस. I think it's a time to open up with these things because this is a biological process and everyone needs to understand that. So I think support should be there. क्या कभी ऐसा टाइम आया कि यू थॉट कि यार 9 to 5 जॉब होती तो ज़्यादा अच्छा होता, ज़्यादा रिलैक्सिंग होता? A lot of times I have thought before COVID also, क्योंकि कैसा है रेलवेज में द ड्यूटी टाइमिंग्स आर अ बिट डिफरेंट. ठीक है, आई हैव 14 नाइट शिफ्ट्स पर मंथ. तो वो सुन के ही मुझे ऐसा झटका लग गया था क्योंकि आई हैव 7 नाइट शिफ्ट्स इन अ रो एंड देन आई गेट 2 ऑफ. तो मतलब ऐसा कभी लगता है कि यार 9 to 5 जॉब वुड हैव बीन बेटर,
बट इसका बेस्ट आंसर मैं ऑलरेडी किसी को दे चुकी हूँ. मतलब लाइक 2018 आई मेट अ मैन. ठीक है, तो मेरे पेरेंट्स ने मिलवाया था. तो ही सेड कि व्हाई हैव यू नॉट एवर थॉट ऑफ क्विटिंग नर्सिंग. तो मैंने कहा कि आई हैड थॉट बट ओके आई डिड नॉट. बिकॉज ठीक है, अभी कोई भी फील्ड में जाना है तो मेहनत करना है. और किसी भी फील्ड में जाने के लिए यू शुड हैव दैट एबिलिटी. तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब मैं किसी नए फील्ड में जाऊंगी तो मुझे इतना जल्दी इंटरेस्ट आएगा. तो इस साइड के नहीं, बट लाइक व्हाई डोंट यू डू MBA. तो मतलब एक 9 to 5 का जॉब रहेगा तो इट वुड बी बेटर फॉर द फैमिली. तो मैंने कहा कि यार मेरे बायोडेटा में इट वाज रिटन नर्स एंड द होल वर्ल्ड नोज के. ज़्यादा नहीं पता तो इतना तो पता है कि नर्सेज में मॉर्निंग इवनिंग नाइट शिफ्ट रहता है. इतना तो हर किसी को मालूम है. तो मैंने कहा व्हाई डिड यू कम एंड मीट मी इफ यू वांटेड अ 9 to 5 जॉब बनी बंदी. तो तभी ही सेड के नहीं, मतलब आई थिंक यू आर वेल इन वेल एजुकेटेड एंड लाइक इंटेलिजेंट इनफ टू मेक अ चॉइस. तो मैंने कहा भैया आई मेक अ चॉइस राइट नाउ दैट यू शुड गेट अप एंड गो लीव. बिकॉज कल को अगर गॉड फॉरबिडन तुम्हारे पेरेंट्स को कुछ हो जाता है, योर फादर और योर ग्रैंड फादर दे सफर स्ट्रोक or something, maybe I can help, maybe I can give them a CPR before the ambulance comes. A 9 to 5 job वाली won't be able to do it. तो एक काम करो, आप जाओ, आप 9 to 5 job वाली ढूंढो, I'll handle myself, ऐसा करके. तो मतलब I think the society won't respect you until and unless you respect yourself. You need to know your worth. So मुझे अब मैं सोचती हूँ during the COVID times, तो इतना जो पैनिक क्रिएट हुआ, I was not panicked at all. अभी भी नहीं हूँ. अभी भी सिर्फ जब मुझे दिल्ली आना होता है लीव लेके, तब मुझे थोड़ा सा दिमाग में आता है कि यार मम्मी पापा के पास जा रही हूँ, कहीं कुछ हो, मतलब ऐसा ना हो कि आई मे बी एन एसिम्प्टोमेटिक कैरियर करके कुछ. बट ठीक है, माई पेरेंट्स आर ऑल्सो वर्किंग. माई मॉम इज ऑल्सो अ सीनियर नर्सिंग ऑफिसर. माई ब्रदर इज अ डॉक्टर. माई डैड इज इन दिल्ली पुलिस. सो एवरीबडी इज गोइंग आउट एंड वर्किंग फॉर द सर्विस ऑफ द पीपल. अगर हम लोग सब ऐसा सोचने लग जाए कि यार 9 to 5 जॉब बेटर होती तो इंडिया चलेगा नहीं. तो आई गेस ये जो देश चल रहा है इसमें जो 9 to 5 वाले नहीं है उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है. सो आई गेस कभी भी दिमाग में ये थॉट आए कि 9 to 5 वुड हैव बीन बेटर, सो यू शुड थिंक कि जब भी 9 to 5 जॉब वाला उतना हेल्प कर पाएगा क्या जितना तुम कर सकते हो किसी की हेल्प. Ma'am, many of our viewers want to know what line of treatment we currently following in the hospitals, as you are experiencing the first hand thing, so you will be able to give a more brief intro about that. Yes, I mean the line of treatment that depends, differs from patient to patient. Like for the most asymptomatic patients, we are only giving them vitamin supplements. Then we are giving symptomatic care to certain patients, like paracetamol दे दिया, कभी ऑक्सीजन थेरेपी चाहिए तो वो दे दिया. एंड HCQ अभी बहुत कम पेशेंट्स पे चल रहा है, बिकॉज यू माइट हैव रेड के WHO ने भी HCQ को मना कर दिया है. देन वी आर फोकसिंग ऑन एंटीवायरल थेरेपी बोथ ओरली एंड इंट्रावेनसली. मतलब इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट, कैसा सिम्टम्स है और लंग कंडीशन कैसा है, हाउ इज द चेस्ट एक्सरे. बेस्ड ऑन दैट द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज. Ma'am, there is a lot of confusion and questions regarding who really needs a ventilator. I have seen well-to-do 27-28-year-old males who are facing a lot of problem, who are developing a lot of symptoms. पहले कुछ भी नहीं था, जब ये आए तभी asymptomatic थे, धीरे धीरे symptoms develop होके I have seen them going on the ventilator. Moreover, I have also seen an 84-year-old man who was diabetic, who was on dialysis, and he recovered from COVID. So I guess COVID, it's more about how you deal with it and your immunity and your willpower to that you want to get better, you want to face this and you want to win this. So I think it's more of unpredictable things going on. Means you can't predict an immune status by the physical structure
or your age status. So now moving on to our next question, what advice would you give to our viewers, because this is the time कि mental health को ज़्यादा focus किया जा रहा है and quarantine और self isolation बहुत बड़ा factor हो गया है. So how to keep sane during this period? Yes, of course. I mean, during this pandemic, no, people are getting affected more mentally rather than that because of the virus. Okay. So I guess it's very important to open up about things. You're not allowed to move out, meet people, and party and everything. So connect with people. I myself, I don't like the option of video calling, but okay, अभी कुछ नहीं है तो you have to do that. Talk to your parents, talk to your siblings, और if you can travel a bit तो at least कोई पास में cousin रहता है तो उसके पास जाओ, पास में कोई friend रहता है तो उससे मिल लो. But vent it out, make a hobby, dance it out, write it out, do anything, but just don't let this loneliness eat you up. Because I have faced it. I have faced what loneliness is, living away from my family for the first time ever in life, doing all the things by myself, not being able to go home, not connecting with them because of my own reasons. So I have faced it. So that loneliness eats you up before the virus can affect you. So don't let that happen. Mental health is very important, because if the virus gets you, maybe our antiviral treatment can help you, but if it gets here, then nobody can help you except you yourself. So I think you need to focus more on, everybody needs to focus more on their mental health during this pandemic. I think the best way is to vent out. Means कब तक आप अपने अंदर रखेंगे? It's the time कि आप बाहर निकालो उस चीज को. To all my juniors, I'll just say that nursing is a very beautiful, very very beautiful profession, and people people now they know this. Now they are coming to their balconies and clapping for you, or lighting up candles and everything. But after this gets over, they'll again forget. That's how it goes. That's how it goes. There's no nothing falls in this. But you need to know your worth, and you need to keep shining. You need to believe in yourself that you are an important, very important part of healthcare system. So keep it on, and never think about quitting nursing. I too thought about it. I could not, and I'm happy that I couldn't. मतलब नर्सिंग एक बार आती है, नर्सिंग एंटर्स इन योर वेन्स. नर्सिंग यू कांट एस्केप. Right. Thank you, ma'am. It was really nice talking to you. And thank you, ma'am, for having me as a host. And I'm so glad this is the first ever raw and unfiltered interview I have seen, or I will be showing someone. So thank you so much for giving that down to the root information and the first hand experiences, your personal experiences. And thank you so much, ma'am. Thank you, Ankita. Thank you. Take care. आई नो मीडिया जो हमें दिखा रही है ये उससे काफ़ी अलग है, फैसिलिटीज़ से लेकर उनके एक्सपीरियंसेस से लेकर. तो गाइस आई वांट कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब इट. बेल आइकन को भी प्रेस कर देना. आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन ट्विटर. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई फेसबुक ग्रुप. उन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में है. एंड आई एम ऑल्सो मैंशनिंग मिस सुरभि गोर्स इंस्टाग्राम. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ यू कैन कॉन्टैक्ट हर एंड ऑल्सो मी. तो हम मिलेंगे नेक्स्ट संडे को. तब तक के लिए से नारा सलाम, नमस्ते.